Hello students, how are you? Welcome back to your own YouTube channel Exploring Education. In this video, we are going to have a discussion about the India's foreign trade. That means this is the fifth chapter of first unit which we are dealing right now. In previous video, we have already made discussion about the various sectors or various aspects of development of Indian economy, like agriculture sector, industrial sector. Now it's time for us to have a discussion about the foreign trade, and that is the third and most important aspect of Indian economy as well as the development of Indian economy concerned. Now talking about the word India's foreign trade, before moving ahead in this chapter, we have to understand the meaning of foreign trade. Now what is the meaning of, what does it mean when we are talking about the foreign trade? Foreign trade is nothing. It is a trade of goods and services among different countries of the world. That means when we are talking about the word definition, that means we are not making the what is the trading activity of a country when we are talking about the independent economy or economy like in India. Foreign trade deals on international level. That means when a country is making a trade in the form of goods and services with another country of the world, or being a home country, if I am dealing with the rest of the world or external sector of the world, that means I am dealing in foreign trade. So foreign trade is nothing, it's a trade of goods and services among the different countries of the world. It is also called international trade. It is also called inter-regional trade. And it is also called external trade. So these are the alternative of name of the foreign trade. तो वही डेफिनेशन मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगा अभी तक। एक बार फिर से रिपोर्ट करता हूँ, इट इज अ स्टेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जब एक अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे कंट्रीज के साथ डील करती है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेडिंग एक्टिविटी करती है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं उन्हीं को इंक्लूड करके हम किसको डिफाइन करते हैं, फॉरेन ट्रेड को, या फॉरेन इंटरनेशनल इंटर रीजनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड में अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेनली मेरे पास तीन है। सबसे पहले हम बात करें किसकी, इंपोर्ट ट्रेड। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी एक्सपोर्ट ट्रेड, और लास्टली हम बात करेंगे किसकी, इंटरपोर्ट ट्रेड, या फिर कह सकते हैं उसको री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो अगर मैं बात करूं इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो देयर आर थ्री वाइटल टाइप ऑफ फॉरेन ट्रेड। द फर्स्ट वन इज इंपोर्ट ट्रेड, सेकंड वन इज एक्सपोर्ट ट्रेड, एंड थर्ड वन इंटरपोर्ट या ट्रेड, या जिसको हम कह सकते हैं री एक्सपोर्ट ट्रेड। अब इनको डिफाइन करूं तो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं इंपोर्ट ट्रेड की बात करता हूं तो इंपोर्ट ट्रेड मींस व्हेन ए कंपनी इज डीलिंग इन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री। दैट मीन्स मैं गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री से मंगाता हूं, या मैं फिर ये कहूं कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर मैं डिपेंड करता हूं किसके ऊपर, फॉरेन कंट्री के ऊपर। तो इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। या मैं कहूं कि मेरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेनेवर देयर इज ए इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री टू होम कंट्री, फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री, इफ देयर इज एनी इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम foreign country to home country, it is also known as import trade. Talking about export trade, when there is a outflow of goods and services from home country to foreign country, that means यहां से goods and services, अगर इंडियन इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो यहां पे एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग क्या होगा, जब इंडियन इकोनॉमी से गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को या किसी अदर फॉरेन कंट्री को, तो वो किस में काउंट होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड में। Whenever there is an outflow of goods and services from home country to foreign country, it is known as export trade. Now talking about the interport trade or re-export trade, some of economies
is import goods for the purpose of export. Then फिर सिंपल सी बात है कि मैं कोई गुड्स मंगाता हूं अमेरिका से और उसको यहां से फिर एक्सपोर्ट कर देता हूं जापान. दैट मीन्स पहले मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया यूएसए से और उसी इंपोर्टेड गुड्स को मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा किसको, जापान को. तो यहां पे इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या है, इफ ए कंट्री इज डीलिंग इन इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट. If an economy is dealing or if there is any inflow of goods and services from foreign country to home country for the purpose of home country to foreign country, for the export of home country to foreign country, so that is the actual meaning of interport trade. So I hope definition clear होगी होंगी. एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करेंगे. तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड. एक बात यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपोर्टेंस जो हम कंसीडर कर रहे हैं ये हम वर्ल्ड वाइड कंसीडर कर रहे हैं. दैट मींस वी आर जस्ट मेकिंग अ डिस्कशन अबाउट ऑल दोस कंट्रीज विच आर डीलिंग इन द फॉरेन ट्रेड. मींस बीइंग ए कंट्री या बीइंग एन इकोनॉमी, व्हाट इज द बेनिफिट अवेलेबल इफ यू आर डीलिंग इन फॉरेन ट्रेड, और व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट इज यू आर अवेलिंग व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. तो टॉकिंग अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो इसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं आपकी इकोनॉमी के ऊपर. लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इंपैक्ट या इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इन रेस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी. फर्स्ट वी आर मेकिंग अ डिस्कशन अबाउट द ओवरऑल इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड. टॉकिंग अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. जब हम बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तो वहां हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को. तो वहां ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट को हम लेके कंसीडर करेंगे कि जो लेबर और स्पेशलाइजेशन की हम बात करते हैं वो किस तरह से इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है या कैसे उस स्पेशलाइजेशन का इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता है. हाल फिलहाल मुझे इतना याद रखना है कि जब मैं फॉरेन ट्रेड में डील करता हूं तो चाहे मैं लेबर की बात कर लूं या फिर स्पेशलाइजेशन की बात कर लूं, उनका बेनिफिट मुझे मिलता है. यानी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेबर भी होती है और जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी कॉमन प्लेटफॉर्म पे होती है. तो उनके स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट किसी भी इकोनॉमी को मिलता है अगर वो फॉरेन ट्रेड में डील करती है. Moving to the next point, optimum allocation of utilization of resources. अब optimum allocation का मतलब हमें पता है कि अगर हम इंडियन इकोनॉमी को ही एग्जांपल लेके कंसीडर कर ले तो यहाँ पे दिक्कत बहुत सारी है कि रिसोर्सेज कैसे हैं. इकोनॉमिक्स पढ़ते इसलिए कि जो रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप कैसे मेक श्योर करोगे. ठीक है. और फॉरेन ट्रेड में जब आप डील करना शुरू करते हैं इकोनॉमी के तौर पे, तो उस फॉरेन ट्रेड की सहायता से ये भी इंश्योर होता है कि उन रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कैसे इनहेंस करोगे. दैट मींस अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर गुड्स को बनाने में आपके ये रिसोर्सेज एक स्टैंडर्ड से ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं और वो अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में चीप रेट पे अवेलेबल है, तो बजाय उसके प्रोडक्शन के आप उसका इंपोर्ट सजेस्ट कर सकते हो. लेकिन इंपोर्ट तभी हो पाएगा जब आप फॉरेन ट्रेड में डील करते हैं. दूसरा थर्ड पॉइंट में बात करें इक्विलिटी ऑफ प्राइस. इक्विलिटी ऑफ प्राइस का मतलब कंपटीशन. कंपटीशन का मतलब ये कि फॉरेन ट्रेड अगर आपके पास है तो आपके पास जो मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल रहेंगी, जिसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे, उन मल्टीपल चॉइसेस का मतलब क्या होता है, क्वालिटी के साथ साथ उनके प्राइस कॉम्पिटिटिव का भी बेनिफिट कस्टमर को मिलता है. ठीक है. अगर मैं इकोनॉमी के तौर पे मेरे यहाँ पे बने गुड्स में डील करूंगा तो शायद मे भी हो सकता है वो क्वालिटी वो स्टैंडर्ड में उनको प्रोवाइड नहीं करा पाऊं जो सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. क्लियर है चीज. तो प्राइस में इक्वलिटी पॉसिबल है जब आप फॉरेन ट्रेड में डील करेंगे. फॉरेन ट्रेड में डील करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे भी कंसीडर करूं तो केवल दो कंपनीज के बीच में फॉरेन ट्रेड है तो मे भी हो सकता है कि प्राइस इक्वलिटी उन कंट्रीज को बेनिफिट ना दे पाए. लेकिन जब आप एक से ज्यादा कंट्रीज में डील करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रेपुटेशन है एक इकोनॉमी के तौर पे, तो वहां पे आपको प्राइस इक्वलिटी का बेनिफिट मिल सकता है. फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस. मल्टीपल चॉइसेस का मतलब ये पहले भी मैंने बताया, अभी मैंने डिस्कस किया कि फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है कि अलग अलग कंट्री अलग अलग क्वालिटी के गुड्स बनाती है. आपके पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है. ठीक है. अगर एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करें तो कई बार क्या होता है किसी पेंडेमिक के टाइम पे भी ये होता है कि आप कोई इक्विपमेंट्स मंगाते हैं किसी फॉरेन कंट्री से और वो एज पर स्टैंडर्ड नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट करके दूसरी कंट्री के साथ भी क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं. लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास फॉरेन ट्रेड का ऑप्शन अवेलेबल है और तभी आप मल्टीपल चॉइसेस में डील कर पाएंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड गुड्स. इंश्योर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड गुड्स का मतलब क्या होता है कि जब एक से ज्यादा सप्लायर आपके पास होंगे, आपको एक इकोनॉमी के तौर पे बात कर लीजिए, इंटरनेशनल ट्रेड के तौर पे बात कर लीजिए, whenever there is a multiple supplier is available regarding the supply of any particular commodity, in that case to enhance the quality is the primary responsibility, is the duty of those supplier.
क्यों होगा? क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइस अवेलेबल है। वो मल्टीपल चॉइस आपको इनहेंस करेगी कि आप स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, क्वालिटी को मेंटेन करें। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में या फिर किसी कंट्री के या इकोनॉमी के तौर पे मार्केट में रहना है तो आपको क्वालिटी को इनहेंस करना पड़ेगा। इनहेंस लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, सिंपल सी बात है, जब स्टैंडर्ड गुड्स आपके पास आएंगे, फॉरेन ट्रेड का ऑप्शन आपके पास है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप डील करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग रीजन है तो वो भी ज्यादा हो सकते हैं, लेबर को ज्यादा आप एफिशिएंसी दे सकते हैं, ज्यादा वर्क टाइम दे सकते हैं, उनके पास ज्यादा अर्निंग होगी, तो ज्यादा अर्निंग होगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी होगा, इंप्रूव होगा। फिर फॉरेन ट्रेड की अगर बात करें, फॉरेन कंट्रीज जहां पे आके इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके इन्वेस्टमेंट से जहां जहां वो इंडस्ट्रीज वगैरह इन्वेस्ट करेंगे, जिन कंपनीज में वो पैसा लगाएंगे, उन कंपनीज का बेनिफिट क्या होगा, उस इकोनॉमी के लोगों को मिलेगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। फॉर एग्जांपल कहीं भी कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसके आसपास के एरिया क्या होते हैं, अपने आप डेवलप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें आप, जैसे जो डॉक्स वगैरह होती है, बंदरगाह वगैरह होती है, वहां पे बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर आप शिपिंग की बात करें, लोडिंग अनलोडिंग की बात करें, एयरपोर्ट वगैरह इनके ऊपर, तो वहां पे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होती है। या फॉरेन ट्रेड में बात करें, किसी कंट्री के बार बार आप सप्लाई करें तो बेटर ये है ना कि अगर आपको सप्लाई बार बार कॉस्टली पड़े तो आप उसी कंट्री में क्या करें, अपनी एक इंडस्ट्री डालें और वहां पे वो क्या होगा, आपको लेबर भी क्या होगा, चीप रेट पे अवेलेबल हो जाएगा और उससे क्या होगा कि वहां के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्या होगा, आप जनरेट करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ कैपिटल। सप्लाई ऑफ कैपिटल का मतलब ये है, यहाँ पे फिर से मैं एफडीआई की बात करूंगा, अगर किसी इकोनॉमी में मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आती है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो वर्ल्ड को लीड कर सकती है इकोनॉमी के तौर पे, तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वो डिसीजन ले सकता हूँ, अपनी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कंपनी की या सप्लाई यूनिट जो भी है वहां पे स्टैब्लिश कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है कि सप्लाई ऑफ कैपिटल पॉसिबल होता है। जो फॉरेन करेंसी मेरे पास आती है, फॉरेन करेंसी कैपिटल के तौर पे मेरे पास आती है, वो मेरी इकोनॉमी को क्या करती है, डेवलप करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, फैसिलिटेट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, फॉरेन ट्रेड में डील करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। आसान तो नहीं, लेकिन यहाँ पे चांसेस जो होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बढ़ जाते हैं। एक इकोनॉमी के तौर पे शायद अपने आप को आप इतना डेवलप नहीं कर पाए, जितना आपके पास ऑप्शन या जितनी आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं जब आप डील करते हैं फॉरेन ट्रेड में या इंटरनेशनल लेवल पे। फिर आता है असिस्टेंस टू द नेचुरल क्लाइमेट्स। नेचुरल क्लाइमेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जो प्रकृति में चेंजेस आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फ्लड, स्टॉर्म, ये सब चीजें, तो इनसे क्या होता है कि जो भी अप एंड डाउन होता है तो उसके केसेस में जो एक बैकअप प्लान के तौर पे जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है वो उस पर्टिकुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं जिस इकोनॉमी में नेचुरल क्लाइमेट से ज्यादा इफेक्ट, बुरा इफेक्ट पड़ा है या ज्यादा बुरे तरीके से जिस इकोनॉमी को इफेक्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम बात करें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करेंगे। तो फिलहाल बैलेंस ऑफ ट्रेड की हमने बात की थी पहले भी, इसका सरप्लस होना या इसके पॉजिटिव वे में होना आपकी इकोनॉमी के मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पे काम करता है, उसको एक फाइनेंशियली बैकअप को प्रोवाइड करता है। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस होना, इसका मतलब फॉरेन जो मेरा फॉरेक्स रिजर्व है वो कहीं ना कहीं आरबीआई के पास जो है वो इनहेंस हो रहा है। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रिंग रेपुटेशन, हेल्थ एंड गुडविल। सिंपल सी बात है, इकोनॉमी के तौर पे आप खुद से डील करें और आप अलग अलग कंट्री से डील करें, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रेपुटेशन और साथ साथ आपकी गुडविल को इनहेंस करती है। और यहाँ एक चीज मुझे ध्यान रखनी है कि गुडविल का इनहेंस होना, इसकी एक सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो क्या होती है, इनहेंस होती है। और किसी भी इकोनॉमी की क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनल मार्केट में इनहेंस होती है तो उसको WTO या जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह, ये आसानी से क्या करते हैं, फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस का मतलब क्या होता है कि मतलब हर कंट्री या मैं कहूँ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है जो इस बात की तरफ लगातार प्रयास करते हैं कि संसार में शांति कैसे कायम की जाए, कैसे पीस का एनवायरनमेंट संसार में जनरेट किया जाए, तो वहां पे फॉरेन ट्रेड एक वेपन, एक टूल के तौर पे काम नहीं किया जा सकता है कि अगर दो एनिमीज कंट्रीज है उनके बीच में अगर फॉरेन ट्रेड के रिलेशंस एस्टैब्लिश हो जाते हैं या उनके बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटी शुरू हो जाती है, तो मे बी वो क्या करते हैं, उस जो एक एनवायरनमेंट उनके बीच में बना होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, पीस। तो इस तरह से क्या करता है फॉरेन ट्रेड जो इंटरनेशनल लेवल पे एक पीस का एनवायरनमेंट जनरेट करने के क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। या फिर मतलब जो पीस का एनवायरनमेंट को जनरेट करने के प्रयासरत एजेंसी है उनको एक मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि आप हमारे यहाँ से इस तरह की एक्टिविटी स्टार्ट करके फॉरेन ट्रेड में डील करके आप वर्ल्ड वाइड पीस का जो एनवायरनमेंट है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन इंटरनेशनल लेवल। तो इनके बेसिस पे मुझे समझ में आ जाएगा कि मतलब इन्हीं को मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि जो बेनिफिट मुझे इंटरनेशनल लेवल पे मिलेंगे उन्हीं को मैं इंडिया के फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग कंसीडर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं, फॉरेन कैपिटल की बात कर सकते हैं, डिमांड की बात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं। ठीक है।
तो फर्दर हम जब डिस्कस करेंगे इसके बारे में तो हम बात करेंगे कि कौन से बेनिफिट हैं जो इंडियन इकोनॉमी को मिले हैं। लेकिन हाल फिलहाल इतना ही इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड है वो, और इस चैप्टर का इस टॉपिक का जब हम बात करेंगे इंडिया फॉरेन ट्रेड की सबसे वाइटल टॉपिक है जो कंपोजिशन या मैं कहूं जो एस्पेक्ट है बैलेंस ऑफ या इंडिया फॉरेन ट्रेड के, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।